Hari Om. Okay, so Dhanishta Nakshatra, ladies and gentlemen, I'll take the whiteboard and we'll start from here. So, see, I have, uh, you know, mixed feelings for Dhanishta Nakshatra. Okay, because there are certain things that are very positive and very, very powerful about Dhanishta Nakshatra. But there are some things that are negative as well about the Dhanishta Nakshatra. So even negative should be taken as a feedback. It should not be taken as something which is very, very negative. Okay, because we must understand, both the aspects of life, the positive aspects as well as the negative aspects of life. My sun moon is in Dhanishta. Sunanda ji कह रही हैं सिमरन जी सिमरन ओके विशाली जी कह रही हैं सिमरन Saturn is in Dhanishta. Great. Swati ji कह रही हैं Saturn in the Dhanishta. My husband has got Ketu in the Dhanishta pada 1. टीना जी कह रही है रमनप्रीत कह रही है धनिष्ठा Saturn pada 3. वैशाली जी कह रही हैं मेरा असेंडेंट धनिष्ठा pada 3 में है. शुक्र इन धनिष्ठा. दिशा कह रही है सन इन धनिष्ठा. मून pada 4. श्वेता my husband has moon pada 1. Okay, Dhanishta. Praveen ji, my ascendant and sun is in Dhanishta, and Shreya कह रही D9 में Saturn Dhanishta nakshatra में है. Fantastic. So a lot of people have a lot of planets in Dhanishta. So I believe that you people, will have good learning, right? Understanding the Dhanishta nakshatra. And you will be also understanding some of the traits. So what is the zodiac position of the Dhanishta nakshatra? So it is 23 degrees of Capricorn to 6 degree and 40 minutes of Aquarius. So I can write down here 26 degree 20 minutes of 1 second. Yeah, 26 degree and 20 minutes of Capi to 6 degree 40 minutes of Aquarius. Okay, so this is the position. So that means if we make a kundli, it's approximately 2 padas, oh sorry, it's 23 degree, not 26, it's 23 degree, I'm sorry, because 2 padas are there in Capricorn and 2 padas are there in the, so 23 degree 20 minutes of Capricorn. So 2 padas are in the sign of Shani, which is Capricorn, and again 2 padas in the sign of Shani again, Saturn again, right? Aquarius. So this is number 10 Rashi and this is number 11 Rashi. Okay. And the Graha, which is associated with the Dhanishta nakshatra, is none other than Mars. मंगल देवता की बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी जो रहती है वो धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर रहती है, राइट? आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा, there was a question that someone had asked, I think in the maybe in a batch or in the discussion group, asking that how planets are associated, planets are ruler of a nakshatra, something like that. But the thing is, please can you mute whosoever has joined? Okay.
So who has joined with the name of Deep? I don't know who is with the name of the Deep, who has joined it. Sir, it's me, Dipali, sir. Oh, okay, Deepali, thank you. Okay, so we were talking about the, association. So I must tell you one thing. If you are my student and if you belong to Rudra Vedic Academy, and if you have learned Jyotisha, please do not make a planet head of a nakshatra, a lord of a nakshatra. You know why? Because nakshatras are quite higher up there and planets are below them. So if something is below someone, it cannot be a lord. Okay. So if we have these nakshatra pockets like this, in the sky, planets in the Milky Way are rotating here. There are planets here, 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 here. So these planets in the Milky Way are quite below the nakshatras. So how can something which is below can, be a lord of something which is pretty up? It cannot be, right? Right. So make sure that you do not do this mistake of saying that the lord of the Dhanishta nakshatra is Mangal. Okay. So what is the right word that you people will use is that Mars is the planet which is associated with Dhanishta. Simple. Okay. When I say associated, it means that there is energy, lot of influence of Mars in the Dhanishta nakshatra. Okay, so suppose a very good Vaishnav friend is associated with you, someone who is like a Gaudiya Vaishnav. Huh? They were very, very strict Vaishnavas. Gaudiya Vaishnava is somewhere in the Bengal. They are there. Gaudiya Vaishnavas. They are also there in the Govardhan. There's a huge temple of Gaudiya Vaishnava in Govardhan. Right. So what does they do? They are very, very strict Vaishnavas. They're doing 32 rounds, 64 rounds of Hare Krishna Mahamantra and eating to the minimum level. And they think that the Jivan, the life that has been given to them in this human form, is basically to chant Hare Krishna Mahamantra. That is Gaudiya Vaishnava. And that this should also be the the major aspect of your life as well. Aspect is looking the way you look your life. You should look your life as a Krishna devotee. Simple. Nothing complicated. Gaudiya Vaishnava think that if you do 32 rounds of Hare Krishna Mahamantra every day, you don't have to do any other mantra in this world. You don't have to do any other anusthana in this world. You don't have to, do any homas or any, havan, anything, nothing to be done. Just do 32 rounds of Hare Krishna Mahamantra every day. All the karmas, all the kriyas, all the pariharas are done. Krishna will take care of all these things. On the same time, Mars is associated with the nakshatra which is sitting in a Rashi associated with Saturn. Now, this is a conflict. This is a conflict, ladies and gentlemen. What is happening here is that a nakshatra of the caliber of Dhanishta is now sitting with Saturn. Now, these two are extremely opposite energies. Mars wants everything and Saturn wants to take everything from you so that you can learn the lessons of life. Mars says that, hey, I am the hero, I am the commander.
I have so many desires. I can do everything in this world. मेरे से ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड कोई हो नहीं सकता, मेरे से ज्यादा अग्रेसिव कोई हो नहीं सकता. आई एम द सेनापति, मेरे हाथ में हथियार है, तलवार है. आई कैन किल एनीवन. Saturn says, no, you cannot. You cannot. You are not everything. Even a soldier can get a court martial. And when a court martial happens, Saturn is the magistrate there. He will tell to the Mars that, hey, you are going to be in jail for 14 years. You are nothing. So people who have planets in Dhanishta, one thing is for sure, and this is written nowhere. This is pure experience. This is absolutely pure experience that people who have any planet, not only Chandra, not only Surya or ascendant, or maybe in the D9 chart, whatever, wherever, you can have a planet in the D10 chart in the Dhanishta Nakshatra. That person will have conflicts in his life, guaranteed. Okay, don't feel negative about it. That conflict can be on the personal front. That conflict can be between you and parents. That conflict between life partner, business partner, siblings, brother, sister, job, work, money, or the biggest conflict of life is the conflict within yourself. There's a conflict within yourself. There's no doubt about it. There will always be a conflict. Who am I? I look so good, so flourish, that people are talking about me all the time. I am having name and fame, but I am hollow from inside. मैं अंदर से ही खाली हूं. और वो होता है ड्रम. जो ड्रम बजता है ना, कितनी आवाज आती है उसकी, वो इतना पावरफुल लगता है, लेकिन वो अंदर से पावरफुल नहीं है. वो दिखता सबको बहुत बड़ा है. वो ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत बड़ा राजा है, पर वो राजा नहीं है. वो अंदर से खाली है. It's not there. Whatever you can say, Raman, this is not the word, but these people become very successful, but they are very, very conflicting from inside. The example that I can give you is Salman Khan. सलमान खान पावरफुल है, चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में है, फिजिकल बॉडी स्ट्रांग होती है इन लोगों की. स्ट्रांग होने का मतलब है ये लीन नहीं होंगे, हैवी होगी बॉडी. थाइज हैवी होती है, आंखें सुंदर होती हैं, बट ऑन द सेम टाइम सब कुछ दिखता है, सब कुछ है. सलमान खान द सेलिब्रिटी, नो, that
that Pahalwan, people dream to become a Salman Khan. People copy him. Meet him personally. He is hollow from inside. When he goes to sleep in the night, do you think he has anyone? Just give me a second, please. Do you think he has anyone to share his feelings with? No. He is leading the Bollywood industry from the front. When he enters, तो उसके नाम के नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं, अनाउंसमेंट होनी शुरू हो जाती है, सलमान खान जी आ रहे हैं. But what is he from inside? Conflict. Yes, love life is a conflict. मैंने धनिष्ठा नक्षत्र में अगर आपका चंद्रमा या सप्तम भाव से जुड़े हुए ग्रह हो, सप्तम भाव, लगन, द्वादश भाव, चतुर्थ भाव से जुड़े हुए ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र में हो, तो ऐसे जातकों की मैरिड लाइफ परेशान देखी है. दिक्कत क्या है धनिष्ठा के अंदर? परेशानी क्या है धनिष्ठा के अंदर? धनिष्ठा चाहता है कि सब कुछ उसकी मर्जी से हो. Strong desire. Dhanishta is like a leader. She has lot of attraction towards money. Dhana, Ishta. Dhanishta loves politics. अगर धनिष्ठा के साथ जुड़े हुए ग्रह किसी भी जातक के हैं, तो जरूरी नहीं वो पॉलिटिशियन हो. वो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा होगा 2 या 3 प्रकार से. पहला प्रकार कि हो सकता है वो रोज पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ता हो, उसको इंटरेस्ट हो पॉलिटिक्स के अंदर, कि एक पॉलिटिशियन ने कंट्री के लिए क्या किया, कैसे हुआ, क्यों हुआ. दूसरी एसोसिएशन, वो हो सकता है पॉलिटिशियंस के साथ उसके अच्छे संबंध हो, जुड़ा हुआ हो. और तीसरा, वो खुद ही पॉलिटिक्स में चला जाए. बहुत से मैंने जैसे लोग देखे, जया प्रदा, एन एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन, सुनील दत्त, एन एक्टर turned politician. So many people I have seen in the Dhanishta. माननीय नरेंद्र मोदी जी, he has got Jupiter in Dhanishta. Shri Devi, they got beautiful eyes, Saturn in Dhanishta. But there has been conflict. There has been conflict in the married lives, in the relationship problems. Kareena Kapoor, she's got Ketu in the Dhanishta. I have seen a lot of cricketers, Ricky Ponting, he's got Moon in the Dhanishta, Janam Nakshatra. You know why? You see, there's one common thing between these people, and that common thing between these people is that these people will walk fast. तेज चलते हैं. अगर कोई भी नेटिव आपको बड़ा तेज चलता मिले ना, बिना बात पे, कोई बात नहीं है,
वो घर के अंदर ही ऐसे भागा फिर रहा है जैसे आग लगी होती है घर में। तो वो पर्सन धनिष्ठा है, उसका चंद्रमा धनिष्ठा में है। उसको बोलते हैं भाई क्या हो गया, धीरे चल लो। फिर वो ऊंची आवाज में बात करेंगे। वो बोले इतनी ऊंची क्यों बोल रहे हो, मेरी तो आवाज ही ऐसी है। और जब चुगली करनी होती है तब आवाज ऐसी नहीं होती है, जब नॉर्मल बात करनी होती है तब आवाज ऐसी है। जब अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ के कोई बात करनी है तो बिल्कुल धीरे धीरे, साथ वाले को पता ना लगे। और वैसे अगर कोई बात करनी है तो है, हाँ, ऊंची। ये क्वालिटीज जो है ये मंगल से आती है। मंगल गिव यू सच ट्रेट्स। लेकिन शनि महाराज मंगल को कंट्रोल कर लेते हैं। कैसे? अगर आप मांगलिक हैं, मांगलिक आप तब होते हैं अगर आपका मंगल प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव और साउथ इंडिया में द्वितीय भाव में हो, सेकंड हाउस, यू आर मांगलिक। इफ यू हैव मार्स, भावा means expression, means houses, not rashis. और इन्हीं भावों में अगर लाइफ पार्टनर का शनि आ जाए, मान लो मेरी पत्नी का मंगल चंद्र धनिष्ठा में हो या मंगल धनिष्ठा में हो, और पति का शनि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस, सेकेंड हाउस में आ जाए, तो वो इस मंगल को काट देता है, नलीफाई कर देता है। याद रखना ये बात, मैंने सिखाई थी आपको, that if Saturn is present in the similar houses in which the Mars is present, the Mars gets nullified. The effect of the Mars gets nullified in the kundli of the opposite partner or the spouse. So, ladies and gentlemen, if you are born in the Dhanishta Nakshatra, you are going to be a very turbulent kind of an energy. And if you marry a boy or a girl who has moon in the Saturn nakshatras, that particular boy or a girl will try to control you. याद रखिएगा। So if that person will try to control you, you will have a conflict. But it is good for Dhanishta Nakshatra also. Anyways, Dhanishta Nakshatra की सबसे बड़ी वीकनेस और प्रॉब्लम ये है कि उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट तो रहना ही है सारी जिंदगी। और उस कॉन्फ्लिक्ट को पकड़ ले कोई तो अच्छी बात है, उसको नहीं पकड़ सकता, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। और शनि के नक्षत्रों में पैदा हुए लोग मंगल के नक्षत्रों में पैदा हुए लोगों को कंट्रोल करना जानते हैं। नहीं तो धनिष्ठा नक्षत्र की अगर लड़की हो, फीमेल हो धनिष्ठा नक्षत्र की, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और उसकी सबसे बड़ी जीवन में प्रॉब्लम केवल दो होती है, ओनली टू। शी इज ऑलवेज गोइंग टू compete with her husband. She will never feel very good about कि उनका जो हस्बैंड है वो बहुत हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया। She will keep asking, where am I? Where am I? Although she is going to enjoy all the luxuries given by the husband,
although she is going to enjoy all the wealth which is coming from the husband, but she will keep asking herself that he's earned so much and he's made me a housewife. I want my identity back. She may not do efforts, but just she want to have that kind of equality. That's the problem with Chandra in Dhanishta. एक ना दूसरा प्रॉब्लम होता है धन का लालच। धन का बहुत लालच रहता है। धन के लिए लालच जो है वो नेगेटिव वर्ड है। अगर पॉजिटिव वर्ड हम यूज करते हैं तो ऐसे लोग धन के लिए बहुत ज्यादा पोजेसिव होते हैं। ये पॉजिटिव वर्ड है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कलयुग में अगर आप अपने धन के लिए पोजेसिव हैं। लेकिन ये पोजेसिव आई कहां से? धनिष्ठा नक्षत्र के साथ जुड़े हुए 8 वसु हैं। ये वसु क्या है? ये वसु ये वो 8 चीजें हैं जो हमारे में वास करती हैं और हम उनमें वास करते हैं। ये लाइन को 2 बार रिपीट करूंगा। वसु का मतलब होता है वास करना। ये वो चीजें हैं जो हम में वास करती हैं और हम उनमें वास करते हैं। ये वो चीजें हैं जिनको हम अपने अंदर स्थान देते हैं और ये वो चीजें हैं जो हमें स्थान देती हैं। जिसमें आपके 5 तत्व, आपका नक्षत्र सारे, सूर्य और चंद्रमा, ये 8 वसुएं हैं और ये 33 करोड़ देवी देवताओं का पाठ है। 33 करोड़ देवी देवता करोड़ में नहीं है। ऋग्वेद के अंदर 33 देवी देवता का ही वर्णन है, 33 करोड़ का नहीं है। 33 देवी देवताओं में से 8 वसुएं हैं, 11 रुद्रा है, 12 आदित्य है, इंद्र और प्रजापति है। याद रखिएगा, इस प्रकार ये 33 बनते हैं। 8 वसुएं हमारा धन है। कोरोना के टाइम में सबसे बड़ा धन क्या था? ऑक्सीजन। 50-50 हजार रुपए का ऑक्सीजन का सिलेंडर बिका। आज ये वायु, विंड, अनिला कहा जाता है वायु को, अनिला। ये परमात्मा ने हमें फ्री दी है। ये हमारे अंदर वास करती है और हम वायु में वास करते हैं। चारों तरफ वायु है और परमात्मा से दी गई फ्री चीज है, एब्सोल्युटली फ्री। एक होता है वास करना और हमारे अंदर और हम उसके अंदर। तो इसका मतलब क्या बनता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट धन है, वैल्यू है। जब आपके श्वास निकल रहे हो, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अगर आपकी उस समय सांस लेने की इच्छा हो, याद रखिएगा ये मेरी बात, पिछले 15 दिनों में मैंने मृत्यु के ऊपर बहुत शोध किया है। बहुत से वेद, पुराण, बहुत सी ऐसी संस्कृत की किताबें पढ़ी, समझी और काफी लर्नर्ड
लोगों से बात की, तो अगर आपकी आखिरी श्वास जब ले रहे हैं, और आपको वैसे तो 99% लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके आखिरी श्वास है, लेकिन जो ज्योतिष के साथ जुड़े हुए लोग हैं, अध्यात्म के साथ जुड़े हुए लोग हैं, गुरुओं के साथ जुड़े हुए लोग हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वेजिटेरियन भोजन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको ज्ञात होता है कि हो सकता है कि अब समय आ गया। और ऋग्वेद ये कहता है कि अगर आखिरी सांस लेते हुए आपको एक और सांस लेने की इच्छा हो, कि बस एक सांस और आ जाए, शायद बच जाऊं, शायद उसी एक सांस से इतनी ऑक्सीजन अंदर चली जाए, क्योंकि मरने वाला व्यक्ति मुंह खोल खोल के सांस लेने की कोशिश करता है कि उसे एक सांस और आ जाए। धड़कन चल रही होती है लेकिन सांस रुकी होती है, डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। तो वो जो इच्छा है एक सांस और लेने की, वो हमें रीबर्थ करवा देती है, वो हमें अगला जन्म दे देती है इस मनुष्य रूप में। इसलिए जब पता ही लग जाए, जब धड़कनें थिड़क रही हों और पता लग जाए कि जाना है, प्रस्थान करना है और नया कुछ शुरू करना है, तब सांस लेने की इच्छा मत रखना, सांस निकलने देना, जाने देना। जब जाने दोगे तो नो मैटर व्हाट योर कर्मास आर, वापिस नहीं आओगे। बहुत बड़ा कर्म हो जाता है उस समय, मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक योग बन जाता है। तो 8 वसुओं में से वायु, जल, पृथ्वी, पृथ्वी को बोलते हैं धारा, अंतरिक्ष को बोलते हैं आहा, और अंतरिक्ष की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं स्पेस की बात कर रहा हूं, मैं स्काई की बात नहीं कर रहा। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेस एंड स्काई? लेट मी सी हु इज इंटेलिजेंट। Who is going to tell me the difference between space and sky? Aha and Prabhasa. Space is aha, sky is Prabhasa. Who is going to tell me the difference? Sky is also known as Deos. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम Deos. ओम धियो यो न Deos. I guess somebody's written something. Let me see. Sky is atmosphere, however, space is unlimited, no oxygen, no vacuum. But in sky also you don't get any oxygen. Sky is space. No, sky is not space. I'm asking you the difference between the space and the sky. No, it's not manifested and unmanifested. Both are actually manifested, practical things.
space is the entire universe where we have several planets, where we have several galaxies like Milky Way galaxies, जैसी बहुत सी galaxies. We have 84 nakshatras. Everything is space. Sky is the only area between sun and earth. सूर्य और धरती के बीच की जो जगह है वो स्काई है, आसमान. Am I making some sense to you? The space between, a very limited thing is the sky. Very limited thing between the sun and the earth is the space, is the sky. And then when you look at all the Milky Ways and so many stars and so many things, that is called Antariksha. So I will be explaining you about 8 Vasus. The first one is known as Prithvi. पृथ्वी को धरा भी कहा गया है, धारा भी कहा गया है. The second one is known as Antariksha. Known as and we call it as a space. Then it is known as, the third one is known as Dhyasu or Dhyos. Dhyos. Dhyos is sky father, sky. Known as Prabhasa, sky. The fourth Vasu are Nakshatras. Nakshatras are also known as Dhruva, or also known as stars, or also known as a pole star, Dhruva. The fifth is known as Agni. Agni is also known as Anala. Anala, Anala, whatever region you belong to, you can call it. I call it Anala, fire. The sixth Vasu is Vayu, which is known as Anila, wind. The seventh is Aditya, which is also known as Pratyusha. And the eighth is the Soma, which is moon, sun, moon, Soma. This is also known as Chandramasa. These are the 8 Vasus. क्या ये हमारे में वास करती हैं? जी हाँ. और क्या हम इनमें वास करते हैं?
ये हमें जगह देती हैं बसने के लिए। जी हाँ, तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और ये सारी चीजें इस प्रकार हैं कि इसमें से ये चीजें कंटेनर हैं और ये चीजें ड्वेलर हैं। कंटेनर, ड्वेलर। कैसे? अगर इन दोनों को आमने सामने रखा जाए, पृथ्वी को आप कंटेनर माने, तो क्या अग्नि का वास पृथ्वी में है? 100% है। अग्नि पृथ्वी में से ही निकलती है। इफ यू लुक एट अ वॉल्केनो, वॉल्केनो इज नॉट कमिंग फ्रॉम द स्काई, इट्स कमिंग फ्रॉम द पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर बहुत बहुत अनला है, बहुत फायर है। आकाश वैक्यूम नहीं क्रिएट करता, आकाश में वायु भी है, याद रखिएगा। उसी वायु से सभी ग्रह एक ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। वो वायु ग्रह लेवल की वायु है, आपके लेवल की ऑक्सीजन नहीं है। सूर्य आसमान में, स्काई में वास करता है, और चंद्र नक्षत्रों में वास करता है। Keeps moving into different nakshatras. One of them is the container, the other one is the dweller that dwells in it, that resides in it. That is how, and इस सब का जो हमें सोर्स है वो महाभारत है, जिसमें इसका वर्णन भगवान कृष्ण ने किया। और एक बृहद रण्यका उपनिषद है, बृहद रण्यका उपनिषद, जैसे बहुत सी उपनिषद हैं, उसमें यह कंटेनर और ड्वेलर का कॉन्सेप्ट दिया गया। भगवान कृष्ण महाभारत में कहते हैं कि मैं सभी वसुओं में से मैं अग्नि हूं, फायर हूं। और अग्नि का सबसे बड़ा काम क्या है? प्यूरिफिकेशन। और मैं आप सबको प्यूरिफाई कर सकता हूं। और ये हमें पता कैसे लगा कि भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अग्नि हूं? इसका पता हमें लगता है जब मंगल देवता के बारे में हम पढ़ते हैं। मंगल देवता मार्स इज एक्चुअली द लॉर्ड ऑफ सामवेद। सभी वेदों में से सामवेद के जो स्वामी हैं वो मंगल देवता हैं, ये बात आप याद रखिएगा। और मंगल अग्नि है। और श्रीमद् भागवतम में, भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूं। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि इन ऑल द वेदास आई एम द सामवेदा।
सामवेद में भगवान कृष्ण है या भगवान कृष्ण ही सामवेद है, तो भगवान कृष्ण ही अग्नि है। और अग्नि का काम है प्यूरिफिकेशन। आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन योर बॉडी, कृष्णा डोमिनेट्स द अग्नि, because Agni is the purest. Agni is the purest. Agni is the victory. And your last destination of the body is Agni. Your final destination as per Hindu dharma is Agni. अग्नि ही आपको पंच तत्व में विलीन करती है। इसके कारण धनिष्ठा नक्षत्र की लास्ट की 2 पदाओं से पंचकें शुरू होती हैं। क्या शुरू होती है? पंचकें। पंचक मीन्स 5। पंचक मीन्स 5, पांचक। पंचकें। दो पदा धनिष्ठा की, कौन सी पदा? थर्ड और फोर्थ पदा, जो कि एक्वेरियस साइन में आती है, 11 नंबर। 4 पदाएं शतभिषा की, चार पदाएं पूर्व भाद्रपदा की, 4 पदाएं उत्तर भाद्रपदा और 4 पदाएं रेवती। अगर चंद्रमा इनमें गोचर कर रहा हो, मतलब ट्रांजिट कर रहा हो, इसको बोलते हैं पंचक। पंचका लगियां हुई हैं, पीपल से पंचक लगी हुई है। एंड इफ समवन डाइज इन दिस पीरियड, तो उसकी डेथ पंचकों में होती है। उसके खानदान में, उसके रिश्तेदारी में 5 लोग और जाते हैं विद इन 2 to 3 years। 5 लोग साथ जाते हैं, 5 लोगों की डेथ हो जाती है। और इस चीज को बचाने के लिए 5 छोटे छोटे पुतले साथ में जलाए जाते हैं संस्कार के समय में। और पंचकों का अलग से विधि विधान होता है। अगर वो विधि विधान कर लिया जाए तो इस चीज को अवॉइड किया जा सकता है। और अगर उस चीज को अवॉइड, मतलब उस अनुष्ठान को ना किया गया मृत्यु के संस्कार के समय में, तो घर पर विद इन 1 to 2 years 5 और लोगों की मृत्यु होना निश्चय है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो जब भी किसी की मृत्यु हो, आप ये देखें कि उस दिन चंद्रमा धनिष्ठा के तीसरे चौथे पदा में, शतभिषा की कोई भी चरण में, पूर्व भाद्रपदा उत्तर भाद्रपदा के किसी भी चरण में, रेवती के किसी भी चरण में नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो आप सामने वालों को कह सकते हैं कि इनकी मृत्यु पंचकों में हुई है और इनका विधि विधान से संस्कार किया जाए। 5 पुतले साथ में छोटे छोटे वो बनाते हैं। बहुत सी और कर्मकांडी प्रक्रियाएं होती हैं, वो अगर नहीं की गई तो उसका नुकसान बहुत होता है। और ये लास्ट के 4
5 नक्षत्र हैं, लास्ट के 5 नक्षत्र। आप ये देखिए, आउट ऑफ दी 27 नक्षत्र बेल्ट, ये लास्ट के 5 नक्षत्र हैं और इसमें 16 18 पदाएं आई हैं। आप देख रहे हैं, 16 + 2 18 पदास, 18 इज इक्वल टू 9, 1 + 8। और रेवती के अंदर आपका लास्ट गेट है रेवती, आपके जन्म का, मोक्ष का, फिर से जन्म लेने का। और आप ध्यान से देखिए कि यहां पर एयर टू अर्थ एंड अर्थ टू वाटर की मूवमेंट है। 2, 6, 10 कौन से एलिमेंट्स हैं? 2, 6, 10 आर व्हाट साइंस? अर्थ। अर्थ। इंसान की मृत्यु अर्थ पे होती है। 3, 7, 11 क्या है? एयर। प्राण जब निकलते हैं तो वो एयर की फॉर्म में निकलते हैं और आपको लगता है कि इंसान शरीर छोड़ के उड़ गया। शास्त्रों में ये वर्णन है कि पंछी उड़ गया, ऐसा कहा गया। और पंछी उड़ा और उड़ के वो जल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जब आपका संस्कार भी हो जाता है, आपकी अस्थियां इवेंचुअली आपके शरीर की राख जल में ही मिक्स कर दी जाती है। माँ गंगा उसको एक्सेप्ट कर लेती है। लाखों करोड़ों लोगों की अस्थियां गंगा में बहा दी गई। आज भी गंगा पवित्र है, आज भी माँ गंगा ओवरलोड नहीं हुई है, आज भी माँ गंगा खाली है। वो कहाँ जाती हैं इतनी अस्थियां? कैसे वो एकदम से पाउडर फॉर्म में बन जाती हैं और एक स्वच्छ जल का पार्ट बन जाती हैं? साइंटिस्ट अमेरिका से आए और उन्होंने पाया कि गंगा मैया के नीचे ऐसे पत्थर हैं जिसमें एक ऐसा केमिकल रिएक्शन पैदा होता है कि उसमें जो भी आप बहाते हैं वो बिल्कुल विद इन आवर्स एक पाउडर की तरह मिक्स होके, इवेपोरेट होके वो पार्ट बन जाता है पंच तत्व का। ऐसा किसी और नदी के पास नहीं है। ये 8 वसुएं घूम रही थी और एक गाय इन्हें नजर आई, बहुत ही प्यारी एक गाय थी। और इनको लगा कि हमें ये गाय चाहिए, वी नीड इट। वो गाय ऋषि वशिष्ठ की गाय थी। कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी गाय। और ध्योस ने उस गाय को चुरा लिया। जब चुरा लिया तो ऋषि वशिष्ठ को गुस्सा आया और उन्होंने 8 की 8 वसुओं को श्राप दे दिया कि आप मनुष्य फॉर्म में जमीन पर जाएंगे और आपको वहां रहना होगा। और धरती और मनुष्य के जीवन का नाम दुख है। आपको लगता है ना आप सुखी हो,
मनुष्य जीवन में सुख का कोई वर्णन ही नहीं है। जो टेम्परेरी रिलैक्सेशन है उसको आप बोलते हो सुखी। टेम्परेरी रिलैक्सेशन को सुख माना गया है। 99% दुख, 1% टेम्परेरी रिलैक्सेशन इज इक्वल टू सुख। तो उन्होंने बोला कि आप 99% दुख भोगोगे, बड़ी माफिया मांगी पर नहीं हुआ। इंटेलिजेंट लोग हैं ये सब, आपके 5 तत्व बहुत इंटेलिजेंट है। इनको पता है कि इवेंचुअली गंगा में जाके हमने मिलना है, गंगा में जाके खत्म होना है। तो माँ गंगा के पास गए, बोले माँ गंगा ऐसा श्राप हो गया, बचाओ। हम आपकी भक्ति करते हैं, आपके सामने सरेंडर करते हैं। माँ गंगा ने बोला शांतनु पिता के थ्रू आप 8 मेरे से जन्म लेंगे, मेरी कोख में आएंगे। 8 वसुएं माँ गंगा के से उन्होंने जन्म लिया, और एक एक करके माँ गंगा ने उनको गंगा में बहा दिया, ताकि उनको मनुष्य जीवन से मुक्ति मिल जाए। 8वीं वसु को वो बहा रहे थे, तो शांतनु ने आके पकड़ लिया और उसे नहीं बहाने दिया। वो वही वसु थी ध्योस, जिसने नंदिनी गाय को चुराया था और उसको मनुष्य रूप में रहना पड़ा यहाँ पर। और वो ध्योस कोई और नहीं थे, वो गंगा पुत्र भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह, जिन्होंने महाभारत की शुरुआत की। और उनको वरदान था कि वो अपनी मृत्यु अपने आप जाने के लिए इस दुनिया से सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल शक्ति उनके अंदर थी। कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि थी, चंद्रमा माघा नक्षत्र में था। कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि, 11वीं तिथि होती है एकादशी। और आज क्या है? कृष्ण पक्ष की एकादशी ही है। पांचों तत्व हमारे इस लेक्चर के साक्षी हैं आज। आज एकादशी तिथि है कृष्ण पक्ष की। 8 की 8 वसुएं साक्षी हैं इस लेक्चर की। भीष्म पितामह ने एकादशी चंद्रमा माघा नक्षत्र में कृष्ण पक्ष के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण किया था और कहा था कि अगर कोई जीवन में ऐसे संकट में फंसा हो जिसमें जीवन और मृत्यु एक समान ही लगे, जिसमें आपको रोज जीना पड़े और रोज ही मरना पड़े, एवरी डे वन हैज टू डाई एवरी डे, मर मर के जीना हो, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से आपके सभी कला कलेश से आपको मुक्ति मिलेगी। 58 डेज तक वो अर्जुन के बिछाए गए तीरों के ऊपर वो लेटे रहे। और जब
शुक्ल पक्ष का 8वां दिन आया, अष्टम तिथि, तो उस दिन उन्होंने अपना प्राण दिए। और ध्योस स्काई पुत्र थे, तो आसमान उन्हें ले गया। इससे हमें कलयुग में प्रैक्टिकली सीखने को क्या मिला? हमें ये सीखने को मिला कि अगर आपके कोई भी दो ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, 6 ग्रह, सभी ग्रह, एक ग्रह असेंडेंट धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो उनके लिए 2 उपाय उनका जीवन बदल सकते हैं। पहला उपाय, टू टेक बाथ इन गंगा एवरी मंथ। इनको हरिद्वार या गंगा में महीने में एक बार जाके स्नान करना ही चाहिए। माँ गंगा उनके सभी प्रकार के दुख, संताप, डेथ लाइक सिचुएशंस सब खत्म करेंगी। और अगर आप फॉरेन में रहते हैं और गंगा नहीं है, तो गंगा जल अमेज़न पे मिल जाता है। रोज 2 चम्मच गंगा जल अपने ऊपर डाल के नहाइए। और दूसरा, अपने जीवन में कभी भी विष्णु सहस्त्र नाम से दूरी मत बनाइए। विष्णु सहस्त्र नामा आपके जीवन का आधार बनेगा। इफ यू हैव अ सिंगल प्लैनेट इन दी धनिष्ठा, ये अष्ट वसुएं जो हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज 8 डायरेक्शंस। धनिष्ठा का मतलब है धन बरसना, मनी, प्रॉस्पेरिटी। और जब धन बरसता है तो छप्पड़ फाड़ के बरसता है। और छप्पड़ फाड़ के बरसने का मतलब है मनी एंड प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग फ्रॉम ऑल द 8 प्राइमरी डायरेक्शंस। The 8 primary directions are north, south, west, east. Northeast, southeast, northwest, southwest. आसमान और पाताल, these are the 8 directionals. The 9th direction is Brahma and the 10th direction is Vishnu. धनिष्ठा नक्षत्र में अगर चंद्रमा, मंगल जैसे प्रोमिनेंट, बृहस्पति, केतु, शुक्र, शनि जैसे ग्रह हो, तो जातक को विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से और गंगा जी में स्नान करने से नेम, फेम, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, 4 पैसे, इनकम, धन सबकी प्राप्ति होती है। जब आपके पास 4 पैसे आते हैं तो नगाड़ा बजता है, सुनो सुनो सुनो, इनके पास बहुत धन आ गया है, ये राजा है। इसीलिए जो इंस्ट्रूमेंट एसोसिएटेड है वो ड्रम, धनिष्ठा, कंपटीशन। जब 4 पैसे आएंगे तो अकड़ भी आएगी, शॉर्ट टेम्पर्डनेस भी आएगी। मंगल और उसको जमीन पे पटकने वाला शनि, ऐसे लोगों के लेग्स में प्रॉब्लम होती है, लात दुखते हैं, पांव दुखते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, थाइस थोड़े हैवी होते हैं, आईज सुंदर होती हैं। उनको ग्राउंडेड रहने में फायदा है। अगर वो ग्राउंडेड नहीं रहेंगे
तो मंगल विल ऑलवेज बी टॉर्चर्ड बाय शनि। हमेशा अपनी धुन, अपनी बात, किसी भी कोई भी बात कह दो उसको नो, ऐसे नहीं नो, हर बात पे नो कहने वाले, जल्दी एग्री ना होने वाले, हमेशा अपने लाइफ पार्टनर को, स्पेशली अगर आपका चंद्रमा धनिष्ठा में हो, उनसे अपना लाइफ पार्टनर गलत चूज हो जाता है। They try to become more dominant sexually. They want to compete with their partner. They always want to show others that they are intelligent, smarter, जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप और मैरिज सफर करती है। Try to follow their own tunes. एंड मैंने ये भी देखा है कि धनिष्ठा नक्षत्र के लोग अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा, और एंड में जब बहुत तबीयत खराब होती है फिर डॉक्टर के पास भागते हैं। यहां से हमें एक चीज और पता लगती है कि आप वसुओं जैसे पावरफुल ही क्यों ना हो, परंतु अगर आप अधर्म करेंगे, चोरी करेंगे, लालच करेंगे, तो आपके जीवन में भी उतनी ही सफरिंग होगी जितनी 8 वसुओं के जीवन में हुई। इस बात को याद रखिएगा आप। उतनी ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी जितनी 8 वसुओं के जीवन में हुई। लोग कहते हैं ना कि पाप और पुण्य का जो अकाउंट है वो सेम है। जितने अच्छे पुण्य आप करेंगे उतने आपके पाप कम होते जाएंगे, धुलते जाएंगे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये 15 दिन के अंदर मैंने हरिद्वार और वृंदावन में रह के शोध किया, रिसर्च किया इसके ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है। पाप का कंटेनर ये है, पुण्य का कंटेनर ये है। ये सेम कंटेनर नहीं है। पुण्य का कंटेनर ओवरफ्लो हो गया तो भी पाप का कंटेनर भरा हुआ है, ये भुगतना ही है। प्लीज डू नॉट थिंक दैट दे आर इन द सेम कंटेनर। बड़े बड़े देवता, वसु, ऋषि, मुनि, देवगण इस चीज से बच नहीं पाए, तो आपको क्या लगता है कि अगर आपने कोई पाप किया और उसके बाद हजारों पुण्य किए तो आप उन पुण्यों की वजह से इस पाप किए गए से आप बच जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। देयर विल बी सफरिंग्स, there will be problems. Although because of the pun, you can be like that Salman Khan, who has name, fame, money, but personally he might be hollow. I don't want to comment on somebody's personal life, but he looks alone. He has not married. He is hollow. शादी के बीच में रहते हुए भी एक इंडिविजुअलिटी और अकेलापन धनिष्ठा को सताता है। ये नक्षत्र हमें बहुत ज्ञान देते हैं जीवन के बारे में, जातक की जिंदगी के बारे में, ताकि हम उन्हें सही उपाय दे सकें, सही रेमेडीज दे सकें, so that we can help them come out of their pain. We can help them come out of this vessel of पाप, sins. पाप खत्म नहीं किए जा सकते, लेकिन पापों को सहने की शक्ति, पाप कर्म के जो नुकसान है उनको सहने की शक्ति ज्योतिष देता है, नक्षत्र देते हैं। नक्षत्र, ज्योतिष, गुरु, मंत्र, उपासना, याचना, ये सारी चीजें आपके पापों को नष्ट नहीं करती, आपको बल देती है, इम्यूनिटी देती है उन पापों को सहने के, उनको सेटल करने के।
5, 6, 7 और 8 लियो, वर्गो, लीब्रा एंड स्कॉर्पियो पदाएं हैं इनकी। 4 पदाएं धनिष्ठा नक्षत्र की। सूर्य की एनर्जी है, मरकुरी की है, वीनस की है और मंगल की है। इनमें सभी ग्रह और पदाएं आप शोध करेंगे। हम श्रवण और धनिष्ठा की सभी पदाएं और ग्रहों पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका शोध जरूरी है, रिसर्च जरूरी है। ये मेरा लेक्चर था धनिष्ठा नक्षत्र के ऊपर।